So hope I'm audible to everyone. So basically, in the previous session, we have started the topic of Indian monsoon, in which we have covered its introduction. Then we covered the monsoon seasons. Then features of Indian monsoon. Then the associated theories. And in theories, we have covered the thermal concept and then the dynamic concept or the ITCZ concept. Right. These topics we have already covered so far. Okay, I hope you have gone through the previous lecture. Then these two theories, the thermal concept and the dynamic concept, they were having certain limitations that, like, they were not able to explain that why onset of monsoon is on 1st June in India. 1st June in India, while the season, while the summer season itself starts in March. Okay, while the summer season itself starts in month of March. This was the first limitation. Then why there is early and late onset of monsoon. Why there is early and late onset of monsoon? Why there is gap in monsoon? Why there is gap in monsoon? And then why there is fluctuation in monsoonal rainfall? Why there is fluctuation in monsoonal rainfall? Okay. Why there is fluctuation in monsoonal rainfall? So these were some of the limitations. Okay, these were some of the limitations which this particular theory, the thermal concept and the dynamic concept, they were not able to explain. Okay. Now, in order to understand the reason that why monsoon arrives in June and not in the month of and not in the month of March or April, for this we have to rely on another concept which is known as jet stream concept. Jet stream concept. We have to rely on another concept which is known as jet stream concept. Now, what is jet stream? So basically, jet streams are of two types. One is the permanent jet stream, and second one is the temporary jet stream. Permanent jet streams. First of all, jet streams are what? These are the upper air circulations. These are the upper air circulations of winds, and these jet stream winds, they follow a highly meandering path like this. So basically, the permanent jet stream, like here we have the earth, this is equator. So over the tropopause region, in the subtropical region, there is one jet stream which is known as subtropical jet stream.
And then in the upper atmosphere of polar region, we have another jet stream known as polar jet stream. So these are the two jet streams, polar jet stream and the subtropical jet stream. Okay, so these are the permanent jet streams. These are the permanent jet streams. So basically, they remains in existence almost throughout the year, although their position with respect to the latitudes. Okay, इनके position latitude के basis पे change जरूर होगी. Okay, like in the previous session, we have discussed about the ITCZ concept, and there we have understood that the pressure belts are not static, rather they are dynamic. So pressure belts के साथ साथ उनके ऊपर upper air circulation में जो है ये jet streams होती हैं. तो with the northward and the southward shift of sun, ये जो jet streams होंगी, ये जो jet streams होंगी, अगर sun का winter solstice हुआ है तो ये नीचे शिफ्ट होंगी थोड़ा सा, और अगर समर solstice हुआ है तो ये ऊपर शिफ्ट होंगी. ओके, तो जेट स्ट्रीम्स भी जो है बाकी के विंड सर्कुलेशन सिस्टम के साथ साथ नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड शिफ्ट होती हैं. ये चीज़ जो है ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है ना. दे ऑल्सो शिफ्ट नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड विद अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन. ओके, समर सोलिस्टाइज एंड विंटर सोलिस्टाइज के बेसिस पे ये भी नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूव करती है, राइट. तो दीज आर द परमानेंट जेट स्ट्रीम्स. टेम्पररी जेट स्ट्रीम, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका लेते हैं, वो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इंडिया के मॉनसून को इम्पैक्ट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर पी कोटेश्वरम. ये इंडियन जोग्राफर थे, इंडियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है ये. ओके, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर पी कोटेश्वरम ऑन मोनेक्स मिशन. इंडिया और यूएसएसआर उस टाइम पे बेसिकली यूएसएसआर हुआ करता था, तो इंडिया यूएसएसआर का जॉइंट मिशन था मोनेक्स, मॉनसून एक्सपीडिशन मिशन, एंड इट वाज हेडेड बाय प्रोफेसर पी कोटेश्वरम. तो इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को. वेल, अब ये जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या कहती क्या है? जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को बेसिकली, दिस जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, इसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट, जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग विंटर्स, एंड सेकंड, जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग समर. सो यू नो वेरी वेल कि विंटर्स कब होंगी इंडिया में, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स कब?
नाउ एम आई ऑडिबल? किस पॉइंट से वॉइस चली गई थी, प्लीज बताओगे जरा। यस नाहिन, किस पॉइंट से जो है वॉइस गई है, बता सकते हो जरा एक बार मुझे। क्लासिफिकेशन तक, ओके। तो जेट स्ट्रीम मैंने बताया था, देयर आर टू टाइप, परमानेंट जेट स्ट्रीम एंड द टेम्परेरी जेट स्ट्रीम, राइट। परमानेंट वाली हो गई, दिस इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दिस इज पोलर जेट स्ट्रीम। और टेम्परेरी कौन सी होगी, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इंडिया के ऊपर फ्लो होती है, इट ब्लोज ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। कैसे होगी वही समझेंगे इस चीज को, राइट। फिर जो है अब हम देखेंगे जो जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है, we can divide this concept into two parts. One is the jet stream during the winter season and second the jet stream during the summer season, ठीक है ना। विंटर सीजन में जेट स्ट्रीम की क्या कंडीशन होगी एंड समर सीजन में जेट स्ट्रीम की क्या कंडीशन होती है। देखो विंटर्स जो है इंडिया में, विंटर्स कब आएंगी इंडिया में, विंटर्स कब आएंगी, जब सन जो है when the sun is vertically overhead over tropic of Capricorn, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, this is tropic of Capricorn. So when the sun is vertically overhead over the tropic of Capricorn, in that scenario जो northern hemisphere होगा, this will be experiencing winter season, this will be experiencing winter season। अब winter season में क्या होगा, winter season में जो ITCZ है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन रीजन्स में, इन सब एरियाज में जो है मॉनसूनल सीजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वाइल ऑन द अदर हैंड जब ITCZ ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा तो इसके साथ पूरी की पूरी प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट होगी। और ऐसे कंडीशन में एक चीज़ देखेंगे आप कि जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में जो जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी साउथवर्ड शिफ्ट होकर सेंट्रल एशिया के ऊपर फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। इट विल स्टार्ट ब्लोइंग ओवर द सेंट्रल एशियन रेंजेस। यहाँ तक क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। यहाँ तक क्लियर है ना एकदम चीज़ें, कि जब ITCZ शिफ्ट होगा तो पूरा का पूरा विंड सिस्टम जो है साउथवर्ड शिफ्ट होगा, और उसी के साथ साथ जो जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विच वाज ब्लोइंग इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स, तो वो भी जो है इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज़ ये? यस नहीं, बताओ प्लीज। ठीक है, हाँ चलिए ओके। तो जो है बेसिकली जब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस के ऊपर फ्लो होना स्टार्ट करेगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये हिमालयन रीजन इन सारे रेंजेस के ऊपर जो है ये ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। So this jet stream, it will start blowing over the central Himalayan mountain ranges like this. अब हिमालयन माउंटेन रेंजेस में देयर आर so many peaks जिनका जो अल्टीट्यूड है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है, और ये जो जेट स्ट्रीम है इसकी भी जो अल्टीट्यूड होती है वो अराउंड 7 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर के आसपास ही होती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम जो है ऐसी हाई पीक से जैसे टकराती है तो ये जो है बेसिकली दो ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाती है, एंड वन ऑफ द ब्रांच ये जो है पूरे इंडिया के ऊपर जो स्टैब्लिश हो जाती है, और एक ब्रांच इसकी जो है जो पेरेंट ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, इट रिमेन्स टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालय, ये हिमालय के नॉर्दर्न साइड में रहती है, बट एक ब्रांच जो है हिमालयन माउंटेन से कट के जो है इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश हो जाती है। अब ये जो जेट स्ट्रीम है, इस जेट स्ट्रीम से क्या होगा, इससे एक तो ये होगा कि इंडिया के ऊपर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगी, ठंडा बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस क्रिएट कर देगी ये। तो कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर जो है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो हाई प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और हाई प्रेशर डेवलप होने के साथ साथ गाइस एक चीज़ और होगी, जो वेस्टर्लीज विंड्स हैं, वो वेस्टर्लीज विंड्स जो है बेसिकली इधर से मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है ना, इन सारे एरिया से मॉइस्चर ले के आएंगी और इंडिया के इन रीजन्स में जो है रेनफॉल करना स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में इन द मंथ ऑफ फेब, इन द मंथ ऑफ मार्च आप देखेंगे कि जो है बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी जो रेनफॉल देख रहे हो, ये क्या है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसीज हैं, ये बेसिकली ड्रिजल फॉर्म ऑफ रेनफॉल हो रही है। ऐसे नहीं है कि एकदम
बहुत टॉरेंशियल रेनफॉल हो रही है, तूफानी बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो साइकिल है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई है इस बार। अगर देखा जाए पिछले साल के कंपैरिजन में, तो पिछले साल में जनवरी के एंड तक जो है, जनवरी एंड या फैब के मिड तक आई थिंक खत्म हो गए थे, फैब तक खत्म हो गए थे बेसिकली, ठीक है ना। बट अभी आप देखोगे तो अभी भी इवन टिल डेट अभी भी वी हैव प्रेडिक्शंस कि कल और परसों जो है रेनफॉल होगी। आज ह्यूमिडिटी कम है, आज कंपैरेटिवली चांसेस कम है बारिश के, लेकिन कल और परसों में जो है बारिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो दीज आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो है रबी की क्रॉप के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, विंटर क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अब इस टाइम पे, क्योंकि अब मार्च का मंथ खत्म हो गया, अप्रैल आ गया था, और ग्रेजुअली अब ये हार्वेस्टिंग सीज़न आ रहा था। हार्वेस्टिंग सीज़न पर अगर बारिश हो जाती है तो ये क्रॉप्स को बहुत ख़राब करेगी, बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाएगी। तो इस टाइम पे जो है ये हमारे लिए जो है ब्लेसिंग नहीं, एक तरह का कर्ज बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये हमारे यस, और दूसरी चीज़ कि दूसरी कंडीशन में ये जो है और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि मानसून को भी लेट करेगी, वो भी समझेंगे भी चीज़ को। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे हर दिन हो रही है बारिश, कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब आपकी तरफ जो बेसिकली ये प्री मानसूनल शावर भी है बेसिकली, ठीक है ना, उस साइड में ये प्री एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड में ये प्री मानसूनल शावर भी है, लेकिन जो है इस बार जो रेन फॉल का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है इस वजह से। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो विंटर सीजन में द कंडीशन इज लाइक दिस। विंटर सीजन में द कंडीशन इज लाइक दिस कि जो जेट स्ट्रीम है, इसकी वन ब्रांच इज टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालय एंड अनदर ब्रांच इज टुवर्ड्स सदर्न साइड ऑफ हिमालय एस्टैब्लिश्ड ओवर द इंडियन रीजन। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब समर सीजन में आते हैं। अब समर सीजन में जो जेट स्ट्रीम थी विंटर वाली, ये तो इधर है ही, बट समर सीजन में ये जो हमारा ITCZ है, ये ITCZ जो है इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन ये जो पहले से विंटर में जो जेट स्ट्रीम यहाँ पे आई हुई है, इट इज रिपेलिंग, इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज ऑफ दिस ITCZ। यानी ये जो जेट स्ट्रीम है, विंटर वाली जेट स्ट्रीम जो समर में आई, जो विंटर में यहाँ पे आई थी, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ITCZ है वो अपने आप को 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। और जब तक ITCZ 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, तब तक इंडिया में बारिश नहीं होगी, मानसून फेल हो जाएगा इंडिया में। जितना प्रोसेस डिले होगा उतना ही लेट फिर मानसून सीजन इंडिया में आएगा। ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो जेट स्ट्रीम है, ये वाली जेट स्ट्रीम का पीछा जाना, ठीक है ना, ये जेट स्ट्रीम जो है हिमालय के नॉर्दर्न साइड में स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो रीज़न ये होता है कि बेसिकली अगर आप हिमालय की प्रोफाइल देखोगे तो कुछ ऐसा है कि एक तरफ है सेंट्रल एशियन रेंजेस, जैसे कि कुनलुन शान, टेन शान, ये सारी रेंजेस हो गई। देन वी हैव द तिब्बतन प्लेटू, देन वी हैव द ट्रांस हिमालय, देन वी हैव द ग्रेटर हिमालय, देन वी हैव द हिमाचल हिमालय, एंड देन वी हैव द शिवालिक। अब ये जो जेट स्ट्रीम होगी, ये बेसिकली जो इंडिया के ऊपर जो जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पे कहीं पे आके स्टक हो गई है। अब क्योंकि ठंडी जेट स्ट्रीम है, एक ठंडा एयर मास है, तो ऑब्वियसली ये इस ग्रेटर हिमालय को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, ये ग्रेटर हिमालय को क्रॉस नहीं कर पा रही है। और जब तक ये ग्रेटर हिमालय को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक ये इधर इस साइड में जो इसकी पेरेंट ब्रांच है, जो इसकी मदर ब्रांच है, ये उसके साथ मर्ज नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ये उसके साथ मर्ज नहीं हो पाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक टिल देन द ITCZ will not be able to proceed towards India and establish at the benchmark location of 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो स्टैब्लिश इटसेल्फ है 25 डिग्री, 25 है, 2.5 नहीं है।
एस्टैब्लिश अप टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये जो प्रोसेस है, इस जेट स्ट्रीम के पीछे जाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, एंड वो स्ट्रक्चर है हमारा तिब्बतन प्लेटू। दिस तिब्बतन प्लेटू विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रोल इन रिवर्सिंग, इन द रिवर्सल ऑफ दिस जेट स्ट्रीम। तो तिब्बतन प्लेटू क्या होता है? तिब्बतन प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ, दिस तिब्बतन प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ amphibolytic granite rock. It is composed of amphibolytic granite rock. और इस रॉक की खासियत क्या होती है कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, डार्क सरफेस होती है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। एंड दूसरा जो तिब्बतन प्लेटू है, ऑन एन एवरेज इसकी 5000 मीटर हाइट हो जाती है। तो इतने सारे माउंटेन्स के बीच में, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे, 5000 मीटर की ऊंचाई पे एक फ्लैट सरफेस है पूरा, एंड दैट्स टू फॉर्म्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक। तो क्या होगा बेसिकली, जब सन का समर सॉल्स्टिस होता है, दैट इज व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ऐसे कंडीशन में द सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकल ओवर द तिब्बतन प्लेटू, एंड इन दिस सिनेरियो दिस तिब्बतन प्लेटू विल बी एब्जॉर्बिंग enormous amount of insolation. It will be absorbing enormous amount of insolation, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत हाई अमाउंट में ये जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है ना, बहुत हाई अमाउंट में जो है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और जब ये बहुत हाई अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली ये जो तिब्बतन प्लेटू है, ये एक हीट पैन की तरह, एक गर्म तवे की तरह हीट एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एंड इट विल स्टार्ट रिलीजिंग कन्वेक्शन हीट। इट विल स्टार्ट रिलीजिंग कन्वेक्शन हीट। अब कन्वेक्शन हीट जब रिलीज होगी तो कन्वेक्शन हीट ऐसे समझ लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने किचन में जो है जो बर्नर है उस पर आपने कोई हॉट पैन, कोई तवा रख दिया है, कोई पैन रख दिया है और उसको बर्नर ऑन कर दिया है, एंड आप मान लीजिए आपको तभी आपके मदर ने, फादर ने कॉल बुलाया एकदम से, आप बाहर चले गए और वो बर्नर पे ही पैन रखा हुआ है और आप उसे रख के वहाँ भूल गए, अपना ना उसमें कोई पानी डाला, ना कोई तेल डाला, कुछ नहीं डाला है, बस वो बर्नर पे ऐसे पैन रख दिया है। अब मान लो ये 15-20 मिनट तक बर्नर या आधे घंटे तक बर्नर ऐसे ही जल रहा था, देन व्हेन यू केम बैक टू द किचन, ठीक है ना, तो आपने देखा कि आप किचन में हीट को फील कर पाओगे, ठीक है, उस तवे पे तो नहीं, तवे से लेकिन दूर भी अगर आप जो है हाथ को रखोगे, ठीक है, इतनी हाइट में भी हाथ अपना अगर रखोगे तो आप जो है उसकी हीट को एक्सपीरियंस कर पाओगे, मैं उस हीट को फील कर पाओगे। वो हीट क्या है, तो वो हीट ऐसी है कि यहाँ की जो एयर है वो लगातार इस गर्म प्लेटू पे आके हीट हो रही है, ठीक है ना, और गर्म प्लेटू पे हीट होने के बाद वो ऊपर राइज कर रही है, ये हॉट एयर ऊपर राइज करना स्टार्ट कर रही है। जब ये हॉट एयर ऊपर राइज कर रही है तो बेसिकली यहाँ पर है ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज क्योंकि जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो ये एक रूफ की तरह एक्ट करेगा, और ऐसी कंडीशन में इन दिस सिनेरियो ये जो हीटेड एयर मास ऊपर जा रहा है, इसकी कुछ ब्रांचेज इधर इंडिया की तरफ चली जाएंगी, while some of the branches will be diverted towards the Central Asian region, Siberian region। अब सेंट्रल एशियन रीजन, साइबेरियन रीजन में इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस होती हैं, बट ये वाली जो एयर मास है ये इंडिया के ऊपर स्टार्ट हो गया है मूव करने के लिए। जैसे जैसे ये एयर मास इंडिया के ऊपर मूव कर रहा है, ये अपर एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहा है, और अपर एटमॉस्फेयर जैसे जैसे वार्म होता जाएगा तो ये जो एयर मास था, जो जेट स्ट्रीम थी, तो ये जो है लगातार हीट को एब्जॉर्व करके हल्की होगी, लाइट होगी वेट में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जैसे ही ग्रेटर हिमालय को क्रॉस करेगी इट विल सडनली मर्ज विद इट्स पेरेंट ब्रांच, ठीक है ना, इट विल सडनली मर्ज विद इट्स पेरेंट ब्रांच लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है लगातार यहाँ से राइज करेगी, और ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा कि सडनली अपनी पेरेंट ब्रांच से जाके मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मई के आखिरी वीक तक, ठीक है ना, यानी तिब्बतन प्लेटू की लगातार हीटिंग होना, और हीट होकर तिब्बतन प्लेटू का इतना ज़्यादा हीट हो जाना कि इट विल बी एक्टिंग एज अ हॉट पैन, और वहाँ से जो है कंटिन्यूसली जो है कन्वेक्शन हीट रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये मई के एंड तक कंप्लीट हो जाता है, और मई के एंड तक जब ये कंप्लीट हो जाता है तो कोइंसिडेंटली यू कैन सी कि हमारे इंडिया में जो मानसून भी होता है वो हमारे कोस्ट पे, ठीक है ना, जो केरला की कोस्ट पे जो है बेसिकली वो स्ट्राइक करता है
इन द मंथ ऑफ विच, कौन से मंथ में स्ट्राइक करता है? जून में स्ट्राइक करता है, 1 जून को स्ट्राइक करता है, और मई के आखिरी हफ्ते तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई मानसून सीजन, वाई द मानसूनल रेनफॉल इज अकरिंग इन द मंथ ऑफ जून, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जून में क्यों आ रहा है, एंड वाई इट इज नॉट कमिंग इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल और मई। क्योंकि तब तक क्या होता है, तब तक हमारे इंडिया पे जो है इस जेट स्ट्रीम का, इस विंटर जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट होता है, और इस विंटर जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होगा बेसिकली कि ये जो है बेसिकली ITCZ को अपनी तरफ स्टैब्लिश नहीं होने देगी, ITCZ के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। और जैसे ही जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट खत्म होगा इंडिया के ऊपर से, ITCZ, नाउ दिस ITCZ, जैसे ही जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट खत्म हुआ यहाँ से इंडिया के ऊपर से, तो नाउ दिस ITCZ विल बी एबल टू स्टैब्लिश इटसेल्फ अप टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और जैसे 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये अपने आप को स्टैब्लिश करेगा, जैसे ही 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड स्टैब्लिश करेगा, दिस विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ पीक ऑफ मानसूनल रेनफॉल इन इंडिया। ये बात समझ में आई कि नहीं चीज ये? तो दिस जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेनिंग दैट व्हाई मानसूनल सीजन, व्हाई द मानसूनल रेनफॉल इज अकरिंग इन द मंथ ऑफ जून एंड नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च। ये पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है इसने। जो थ्योरीज की जो लिमिटेशन थी, उन लिमिटेशंस में उस पहले लिमिटेशन कि मॉनसून जो है जून में क्यों आ रहा है, वो इस चीज़ को समझा पा रहा है। यस, नहीं क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज़? ये कंफर्म करो प्लीज। प्लीज कंफर्म। ठीक है, अब इसी के साथ साथ, चलो गुड, अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ये जो एयर मास है, ये जो हीटेड एयर मास है, ये कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर जो है मूव कर रहा है। ठीक है ना? इसकी कंडीशन कुछ ऐसे होगी, दूसरे डायग्राम से समझेंगे इस चीज को। That here we have India, mountain ranges, Himalayan mountain ranges, then Tibetan plateau, और इस तिब्बतन प्लेटो के हीटिंग से जो एयर मासेस है दे आर राइजिंग अपवर्ड, एंड देन ये इंडिया के अपर एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं। और जब ये इंडिया के अपर एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं, तो इन एयर मासेस का जो टेल है वो देखोगे ईस्टर्न साइड में है, प्लस ट्रॉपिकल रीजन में चल रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है ना? अब ये जेट स्ट्रीम जो है बहुत हीटेड, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इट विल रिमेन इन द अपर एटमॉस्फेयर जब तक ये ठंडी होके हैवी होके कहीं सबसाइड होना स्टार्ट ना हो जाए। और सबसाइड कहाँ पे होगी ये? तो ये लगातार अपर एटमॉस्फेयर में ऐसे मूव करती रहेगी, एंड मूव करते 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 फाइनली ये इधर इंडियन ओशन की इधर इस रीजन में, यहाँ पर एक मेस्करनीज आइलैंड है मेडागास्कर के पास, वहाँ पर मेस्करनीज के रीजन में, मेस्करनीज के रीजन में ये एयर मास जो है लगातार नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो एयर मास जब ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो ये बना देगा यहाँ पे हाई प्रेशर। तो इस तरह से बनेगा मेस्करनीज हाई प्रेशर बेल्ट। तो आप देखोगे एक तरफ एयर मास ऊपर राइज कर रहा है, तो ऊपर राइज कर रहा है तो इस रीजन में क्या बनेगा? यहाँ बनेगा लो प्रेशर। ये एयर मास लगातार अपर एटमॉस्फेयर मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एंड देन ये जो है मेस्करनीज रीजन पे आके हाई प्रेशर पे नीचे गिर के हाई प्रेशर बना रहा है वहाँ पे। अब क्या होगा, इधर हाई प्रेशर बन गया, इधर लो प्रेशर बन गया, तो एक लोकलाइज सर्कुलेशन, एक लोकलाइज सेल बन गया है, जिसमें क्या होगा, जो विंड है जो सरफेस विंड है वो इस हाई प्रेशर जोन से इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये जब इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो ऐसे कंडीशन में काफ़ी क्वांटिटी में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इस इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्टली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पर जो है कोलाइड करेगी। और ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे होगा, तो इस रीजन में क्या होगा बेसिकली, जैसे ये जो एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स के, तो रीजन्स लाइक कोच्चि, मुंबई, इन जगह, इन सारे एरियाज में सडनली बहुत हैवी रेनफॉल होगी, एंड दीज रीजन्स में रिसीव अप टू 350+ सेंटीमीटर रेनफॉल इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये जो मैकेनिज्म होगा, दिस मैकेनिज्म विल बी रेफर्ड एज burst of monsoon. This mechanism will be referred as burst of monsoon. ठीक है ना, एक सर्कुलेशन बन गया पूरा पूरा ये, इसको मैस्कर्नीज हाई प्रेशर सर्कुलेशन भी कह देते हैं, या मैस्कर्नीज सर्कुलेशन भी कह देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैस्कर्नीज सर्कुलेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज? ये देखो एक बार चेक करो इसको, ठीक है ना, चेक करो इसको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पार्ट, ये बर्स्ट ऑफ मॉनसून, देन जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है ना, अब देखते हैं वॉकर सर्कुलेशन। अब बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें देखते हैं पहला वॉकर सर्कुलेशन, एल नीनो, ला नीना, एंड देन एल नीनो सडन ऑसिलेशन, एंड एल नीनो सडन ऑसिलेशन। ठीक है ना, इन चीज़ों को देखते हैं, एल नीनो सडन ऑसिलेशन। सो बेसिकली वॉकर सर्कुलेशन, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो सडन ऑसिलेशन। अब इसमें देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा सेटअप समझना पड़ेगा कि लाइक हियर we have India, this side we have Indonesia, then Southeast Asian region, then Africa, and this side so this side we have South America। ये सिनेरियो है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में ये हमारी सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स है जो इधर से आगे जा रही हैं, एंड दीज ट्रेड विंड्स दे आर ड्रैगिंग मच ऑफ द वार्म वाटर नियर द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के आसपास ये बहुत ज़्यादा वार्म वाटर का एक्यूमुलेट कर रही हैं, और कहाँ से लेके जा रही हैं? फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू के कोस्ट से इधर से ऐसे लेके जा रही हैं इधर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेरू के सरफेस वार्म वाटर ड्रैग होकर आगे चला गया है, तो पेरू के डीपर जोन का जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, आप देखेंगे कि पेरू के कोस्ट पे जो है कोल्ड वाटर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर रहता है, अपवेलिंग वाटर होगा। अब अपवेलिंग वाटर से क्या होगा, ये रीजन में हाई प्रेशर होगा, ठीक है ना, इस रीजन में हाई प्रेशर होगा। वाइल ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, तो वार्म वाटर एक्यूमुलेट होने से इस एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ की जो एयर है वो हीट होके ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। सो वेर एवर द एयर मास इज हीटेड एंड इट इज राइजिंग अपवर्ड, तो उस एरिया में क्या बन जाएगा, वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, राइट नाउ। अब ऐसी कंडीशन दूसरे डायग्राम से देखते हैं, तो ये कंडीशन कुछ ऐसे है, इंडोनेशियन रीजन,
Indonesia. Then here we have Peru. अब नॉर्मल कंडीशन में इंडोनेशिया के आसपास वार्म वाटर है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि जो एयर है इट विल हीट इट अप, इट विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड. और ये एयर जब हीट होकर ऊपर राइज करेगी, स्टार्ट होगी राइजिंग इसकी, तो वन ऑफ द ब्रांच ये इसकी ट्रोपोपॉज से टकरा के बाइफरकेट होकर इधर जाएगी और नियर अबाउट पेरू रीजन में ही नीचे ठंडी होने के बाद हैवी होने का सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगी. वाइल ऑन द अदर हैंड द अनदर ब्रांच इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और ये नियर द कोस्ट ऑफ अरेबिया, इथोपिया, इन सारे एरियाज के एक बड़े रीजन के एरिया में. ऐसा नहीं है कि एयर किसी पिन पॉइंट लोकेशन पे गिर रही होगी, एक रीजन में गिरेगी एयर. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन में भी जब ये डाउनवेलिंग एयर मास है, सो वेयर एवर वी हैव डाउनवेलिंग एयर मास, दैट रीजन विल बी डेवलपिंग हाई प्रेशर. That region will be developing high pressure. So here we have high pressure, here we have low pressure. Okay, here we have low pressure. So this is a normal condition, and from this high pressure, the winds will be moving towards this low pressure, and in this way, ये circulation develop हो जाता है. इस circulation को हम कहते हैं Walker circulation. This circulation is referred as Walker circulation. So this is Walker circulation. ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, राइट? कि इंडोनेशियन रीजन विल बी हैविंग लो प्रेशर बिकॉज जो ट्रेड विंड्स हैं, जो हमारी सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं, वो सारी विंड्स जो है बेसिकली सरफेस वार्म वाटर को ड्रैग करके इस रीजन में ही इकट्ठा कर रही हैं, राइट? नाउ व्हाट हैपन्स, हमारा जो सन है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट है सन स्पॉट. सन स्पॉट. और सन स्पॉट क्या कहता है? सन स्पॉट थ्योरी क्या कहती है बेसिकली, कि जैसे हमारा जो सन है ये ऑलमोस्ट 10 से 12 साल के गैप पे ये दो फेज में जाता है, या तो ब्राइटनिंग फेज में जाएगा या फिर डिमिंग फेज में जाएगा. ठीक है ना? एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं इसको, मैं वैक्सिंग, वेनिंग ये सब वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पर्पज़ है मॉनसून को समझने का. ठीक है ना? तो बेसिकली सन जो है बेसिकली जब ब्राइटर फेज में होता है तो वहाँ से सनलाइट बहुत ज़्यादा निकलेगी, और सनलाइट जब बहुत ज़्यादा निकलेगी तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे भी सनलाइट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी. तो हमारी अर्थ भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इन दैट कंडीशन आवर अर्थ विल ऑल्सो बी एब्जॉर्बिंग, विल बी रिसीविंग मोर एंड मोर सोलर रेडिएशंस जब सन ब्राइटर फेज में. सिमिलरली व्हेन द सन इज इन डार्कर फेज, डिमिंग फेज में क्या होगा, सन का जो आउटर लेयर है कोरोना, उस कोरोना पे इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो जाएंगी. तो जो जैसे मान लो कि टॉर्च के लेंस पे अगर कुछ स्पॉट डेवलप हो जाएगा तो टॉर्च से लाइट तो निकलेगी लेकिन पहले से वो लाइट ब्राइट नहीं रहेगी ज़्यादा. सेम कंडीशन विल बी हैपनिंग हियर. तो इसके ऊपर क्योंकि एक स्पॉट बन गया है पूरा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले से कम रेडिएशंस रिलीज होंगी. ठीक है ना? तो ये एक डिमिंग फेज हो गया, ये एक ब्राइटनिंग फेज हो गया. अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है ना, जो लोग लाइव देख रहे हैं वही बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, अगर सन ब्राइटनिंग फेज में है, ठीक है ना, अगर सन की ब्राइटर फेज चल रही है, तो हमारी जो अर्थ है उसको मोर देन द एवरेज सोलर रेडिएशंस रिसीव होंगी या लेस देन द एवरेज? आप बताओ. हमारी जो अर्थ है उसको मोर देन एवरेज सोलर रेडिएशन रिसीव होंगी ब्राइटनिंग फेज में या फिर लेस देन द एवरेज? बताइए. सोचो थोड़ा इसके बारे में, सोचो. मोर देन द एवरेज, वेरी गुड. ठीक है ना? अब जब हमारी अर्थ को मोर देन द एवरेज अगर सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, तो आप मुझे एक और बात बता दो फिर, कि जो हमारी प्रेशर बेल्ट है हमारी अर्थ पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये प्रेशर बेल्ट्स पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी? देखो आप ही को बताना है, मेरे को नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ. ठीक है ना? यस, वो पहले से स्ट्रांगर हो जाएंगी. ठीक है ना? वो पहले से स्ट्रांग हो जाएंगी. तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी तो सीधी सी बात है, जो विंड्स है हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी
तो ऐसे में क्या होगा, विंड वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विंड वेलोसिटी जब ब्राइटनिंग फेज है तो प्रेशर बेल्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और जब प्रेशर बेल्ट्स स्ट्रांग हो जाएंगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विंड वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी, और जब विंड वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी तो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में वार्म वाटर को इंडोनेशिया के आसपास एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे में इंडोनेशिया पे जो लो प्रेशर है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। लो प्रेशर अगर और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा तो वॉकर सेल और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। वॉकर सेल और भी ज़्यादा क्या होगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। हाई प्रेशर लो प्रेशर के जो डिफरेंसेस होंगे वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वॉकर सेल में जो विंड्स है वो पहले से और ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ चलेंगी। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये वॉकर सेल में जो विंड्स होंगी ये और भी ज़्यादा हाई वेलोसिटी विंड्स के साथ चलेंगी, और जब ऐसा होगा देन व्हाट विल हैपन, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेसिकली कि एक समझ लो ऐसे इस चीज़ को कि वॉकर सेल वाली कहानी अलग चल रही है, और ये इंडिया है, और ये है हमारी मॉनसूनल विंड्स विच आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंडिया, ये इंडिया की तरफ जा रही हैं। एंड देन हियर एट दिस लोकेशन वी हैव इंडोनेशियन रीजन, जहाँ पे क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, दिस साइड वी हैव हाई प्रेशर, दिस साइड वी हैव हाई प्रेशर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो विंड्स यहाँ से मूव कर रही हैं, द विंड्स विच विल बी मूविंग इन दिस वॉकर सर्कुलेशन फ्रॉम दिस हाई प्रेशर टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है मॉनसूनल विंड्स को भी जो है पुश करेंगी इंडिया की तरफ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो मॉनसून विंड्स की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड या थोड़ा बहुत और उससे ज़्यादा इंक्रीज होगी, और ऐसी कंडीशन में इंडिया में मॉनसून विंड्स ज़्यादा क्वांटिटी में जल्दी जल्दी पहुँचेंगी एंड मोर देन द एवरेज रेनफॉल करेंगी, मोर देन द एवरेज रेनफॉल करेंगी, ठीक है ना, मोर देन द एवरेज रेनफॉल करेंगी। तो ये जो बेसिकली इंटेंसिफाइड वॉकर सेल है, ठीक है ना, इंटेंसिफाइड वॉकर सेल इज बेसिकली showing the La Nina effect. It is showing the La Nina effect. जाहिर सी बात है इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम, यहां से जो विंड्स इधर आ रही होंगी तो ये बहुत सारे सरफेस वार्म वाटर को ड्रैग करके लगातार एक वाटर स्ट्रीम, एक वाटर करंट इस तरह से यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। तो ये पूरा पूरा हमारा जो है ला नीना इफेक्ट तैयार हो गया इधर ऐसे, ठीक है ना, ये पूरा एक ला नीना इफेक्ट तैयार हो गया, राइट। अब ला नीना इफेक्ट से हमने देखा कि इंडिया में जो मानसून है वो मोर देन द एवरेज होगा, सरप्लस मानसून होगा इंडिया में, राइट। अब देखते हैं एल नीनो इफेक्ट क्या होता है। एल नीनो इफेक्ट में सोलर रेडिएशंस, बेसिकली क्या होता है, जब सोलर रेडिएशंस हमारी अर्थ को कम रिसीव हो रही होंगी तो जब अर्थ को सोलर रेडिएशंस कम रिसीव होंगी तो हमारी प्रेशर बेल्ट से पहले से क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, और जब प्रेशर बेल्ट्स पहले से ज़्यादा वीक हो जाएंगी सो दे वोंट बी एबल टू ड्रैग मच ऑफ द वार्म वाटर टुवर्ड्स इंडोनेशिया, क्योंकि विंड्स की जो वेलोसिटी है वो पहले से क्या हो गई है, वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो विंड की वेलोसिटी कम हो गई है, विंड्स पहले से वीक हो गई है, तो दे वोंट बी एबल टू ड्रैग दिस मच वार्म वाटर टुवर्ड्स इंडोनेशिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ग्रेजुअली इस कोस्ट पे ही वार्म वाटर ज़्यादा रहने लगेगा, क्योंकि जो है विंड्स वर नॉट एबल टू ड्रैग मच ऑफ द वार्म वाटर टुवर्ड्स इंडोनेशिया। अब कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि इंडोनेशियन रीजन के जो वाटर्स है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और कम टेम्परेचर होने के कारण दिस रीजन विल बी डेवलपिंग अ हाई प्रेशर, और जबकि ये वाला जो एरिया था यहाँ पहले हाई प्रेशर हुआ करता था, तो वो जो है बेसिकली यहाँ पे वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दिस रीजन विल बी डेवलपिंग अ लो प्रेशर। देन सिमिलरली इस रीजन में जो विंड्स सबसाइड हो रही थी वो भी नहीं हो रही है, तो इसलिए इस रीजन में भी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, यानी जो वॉकर सेल है वो क्या हो गया है, वॉकर सेल रिवर्स हो गया है, ठीक है। जो वॉकर सर्कुलेशन था वो क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया है। अब जब वॉकर सर्कुलेशन रिवर्स हो गया है तो यहाँ पे होगा क्या कि जो विंड है वो अब इंडोनेशिया से, द विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम इंडोनेशिया टुवर्ड्स दिस रीजन, और यही विंड्स क्या करेंगी, जो हमारे मॉनसूनल विंड्स थी जो इंडिया की तरफ जा रही थी,
जो मॉनसूनल विंड्स जो इंडिया की तरफ जा रही थी, तो ये विंड्स उन मॉनसूनल विंड्स को अपने साथ ड्रैग करके आगे ले जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंडिया विल बी रिसीविंग लेस अमाउंट ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल, मॉनसूनल विंड से इंडिया में कम पहुंचेंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडिया में बारिश भी कम होगी। तो एल नीनो इफेक्ट में हमने देखा कि एल नीनो इफेक्ट तो बेसिक हो क्या रहा है, ये हाई प्रेशर से अब लो प्रेशर की तरफ जब विंड मूव कर रही है, तो वार्म सरफेस ओशनिक वाटर, ये वार्म सरफेस ओशनिक वाटर लगातार इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ इसको कैल्विन वेव्स कहते हैं, और यही जब नीचे उतर के जाएगा यहाँ पे, तो ये एल नीनो बन जाएगा। फिर यहाँ पर तब ये एल नीनो बन जाएगा, राइट। अब ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि एल नीनो की वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं इस साइड में इन एरियाज में तो बारिश हो जाएगी अच्छी वाली, ठीक है ना, लेकिन इंडिया में इन सारे एरियाज में क्या होगा, ड्राई कंडीशंस प्रिवेल होंगी। तो ये था एल नीनो। अब एल नीनो सडन ऑसिलेशन क्या है, एल नीनो सडन ऑसिलेशन यही टेम्परेचर कंडीशंस का वेरिएशन है, कभी यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच के, इसी को बोल दिया एनसो बेसिकली। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ चीज़ ये? यस, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? इसको मैं आपको एक दूसरे एनिमेशन से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, तो ये कंडीशन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, राइट, ये कंडीशन आपको यहाँ दिख रही होगी। तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। और तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये दिस साइड वी हैव साउथ अमेरिका, ठीक है ना, एंड साउथ अमेरिका पे आप देखेंगे तो ये अपवेलिंग कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट, ये दिख रही है, ठीक है, दिस इज द अपवेलिंग कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट, ये कोल्ड वाटर जो है लगातार अपवेलिंग कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बन गया कोल्ड, यहाँ कोल्ड करंट आ गई है, राइट। वेयर एज इफ यू चेक द साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर, विंड्स है ये वार्म वाटर को ड्रैग करके यहाँ लेके जा रही है, तो इट इज़ एक्सपीरियंसिंग एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर, और एक वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन भी होगा, क्योंकि वार्म वाटर का इवेपोरेशन जल्दी होता है, तो इवेपोरेशन भी होगा, और यहाँ प्लस हैवी रेनफॉल भी हो रही होगी यहाँ पर। ये नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज़ अ रेगुलर ईयर, ठीक है ना, दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। यही कंडीशन अगर इंटेंसिफाइड हो जाएगी कि यहाँ पे जो लो प्रेशर बन रहा है वो लो प्रेशर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो इन दैट सिनेरियो इस कंडीशन को फिर हम ला नीना इफेक्ट करेंगे। बट एल नीनो में क्या होगा अब, ठीक है ना, ये ध्यान से देख लो इस चीज़ को। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, दे आर एक्यूमुलेटिंग वार्म वाटर टुवर्ड्स दिस साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इस एरिया में लगातार जो है ये वार्म वाटर को एक्यूमुलेट कर रही है, तो इस दिस रीजन इज एक्सपीरियंसिंग लो प्रेशर, ये लो प्रेशर डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है रेगुलर ईयर में ये होता है, एल नीनो ईयर में क्या होगा, एल नीनो ईयर में कंडीशन रिवर्स हो गई है। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे तो पहले उधर ड्रॉट पड़ रहा था, ठीक है ना, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में अब ड्रॉट पड़ना स्टार्ट हो गया है, चेक दिस। एक्सक्यूज मी, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे ड्रॉट पड़ना स्टार्ट हो गया है, राइट। वेयर एज यहाँ, और यहाँ पे ड्रॉट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इस दिस रीजन इज डेवलपिंग हाई प्रेशर, इस एरिया पे हाई प्रेशर बन गया है, तो हाई प्रेशर से जब विंड्स ऊपर जा रही हैं तो विंड्स सरफेस वार्म वाटर को ड्रैग करके आगे लेके जा रही हैं, और ये जो मूव कर रहा है वाटर पूरा, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज कैल्विन वेव, जिसको आगे जाके बेसिकली हम एल नीनो बोलेंगे, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे लो प्रेशर बन गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे अब कोस्ट वार्म हो गई है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और ऐसे कंडीशन में पेरू चिली इन सारे एरियाज में बहुत हैवी रेनफॉल होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया इन सब एरियाज में अगर हैवी रेनफॉल हो रही है,
तो डेट रिजेंबल्स, उससे एक चीज़ का इंडिकेशन मिल जाता है कि इंडिया में भी बारिश अच्छे होने के चांसेस होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इधर पेरू और चिली की तरफ अगर हैवी रेनफॉल हो रही है, फ्लड आ रहे हैं, या इथोपिया, सोमालिया, अरेबिया, इन सारे एरियाज में जो है हैवी रेनफॉल हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, दैट इज़ अ इंडिकेटर कि भैया अब जो है हमारे इंडिया में आने वाले टाइम में शायद सूखा पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गई है। अब लोकल इफेक्ट क्या होगा एल नीनो का? सो दीज आर द टेम्परेचर कंडीशंस जो यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे इसकी, ठीक है ना। जून अगस्त में सिचुएशन ये वाली हो जाएगी, ठीक है, जून अगस्त में सिचुएशन ये वाली हो जाएगी इसकी। तो दीज आर द इम्पैक्टेड रीजन्स, एल नीनो के वजह से इम्पैक्ट होने वाले रीजन्स ये दिखा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन भी आपने देखा हुआ क्वेश्चन होता है कि ऑल्दो ओरिजिन ऑफ एल नीनो इज अ लोकल फिनोमिना बट इट्स इफेक्ट्स आर ग्लोबल। ओके, तो इस तरह से एक बार पूरा इस पूरे एपिसोड का पूरे सिनेरियो को हम समझ सकते हैं यहाँ पे देखकर कि कैसे एल नीनो का ओरिजिन होता है, और यू कैन वॉच इट लेटर ऑन ऑल्सो। ओके, ये पूरा एक सिनेरियो था जो हमने डिस्कस किया अभी यहाँ पर। तो एल नीनो क्लियर हो जाना चाहिए, ला नीना क्लियर हो जाना चाहिए, एल नीनो सडन ऑसिलेशन। अब एल नीनो मोडोकी क्या होता है? एल नीनो मोडोकी को भी यही समझ लेते हैं कि जो एल नीनो जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर लगातार जो विंड्स हैं ये वार्म वाटर को आगे ड्रैग कर रही है। तो कई बार क्या होता है कि वार्म वाटर इतना ज़्यादा ड्रैग होता है आगे कि यहाँ बीच में एक आइलैंड है, ताहिती आइलैंड, सेंट्रल पैसिफिक रीजन में ताहिती आइलैंड है। सो ताहिती वाले रीजन पे इतना ज़्यादा वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है कि जो वॉकर सर्कुलेशन है वो ईस्टर्न साइड में सर्कुलेट शिफ्ट हो जाता है। जैसे अभी जो वॉकर सर्कुलेशन है उसका मेन एक्सिस क्या है? इंडोनेशिया है ना, वहीं पे लो प्रेशर बन रहा है, वहीं हाई प्रेशर बन रहा है। ये वॉकर सर्कुलेशन यहाँ से शिफ्ट होकर ईस्ट वर्ड चला जाएगा, यानी आगे ताहिती आइलैंड में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका नतीजा ये होगा कि सेंट्रल पैसिफिक रीजन में एक्सट्रीमली लो प्रेशर बन जाएगा, वहाँ का वार्म वाटर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। तो एक तो क्या होगा ऐसे में मोडोकी जो है जापानीज वर्ड है, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में इन सारे एरियाज में जो है बहुत ही सीवियर इंटेंसिटी के सुपर साइक्लोन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मॉनसून हमारा और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो मॉनसून विंड्स ऊपर इंडिया की तरफ जा रही होंगी उन मॉनसून विंड्स को ये जो लो प्रेशर यहाँ बन रहा है वो इक्वेटर के आसपास ही पहले उनको इधर ही खींच लेगा, क्योंकि मॉनसून विंड्स कैसे जाती है? तो यहाँ इक्वेटर को क्रॉस करती है सदर्न हेमिस्फीयर से, फिर ऊपर जाती है ना, तो वो पहले ही उसको यहाँ ड्रैग कर लेगा इंडिया के ऊपर, मतलब और कम पहुँचेंगी विंड्स। ये प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है मोडोकी के केस में, ठीक है, एडोकी या मोडोकी के केस में। तो गाइज ये हो गया हमारा एल नीनो मोडोकी, एल नीनो एडोकी, ईस्ट शिफ्ट ऑफ ये वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब आते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ये क्या सिनेरियो होता है, ठीक है ना। लेट अस चेक इट आउट दिस। पॉजिटिव आईओडी एंड नेगेटिव आईओडी, ठीक है। यस, इंडियन ओशन डाइपोल पे बहुत अच्छी रिसर्च करी है बेसिकली ब्यूरो ऑफ ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने, ठीक है ना। अब ये जो है बेसिकली इंडियन ओशियन के दो पोल्स दिख रहे हैं, एक ये पोल हो गया और एक ये पोल हो गया। तो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दे आर, जस्ट होल्ड ऑन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द वेस्टर्न साइड एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन का ईस्टर्न साइड अगर नॉर्मल कंडीशन में वार्म रहता है, तो जब इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न साइड है नॉर्मल कंडीशन में वार्म रहता है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यूट्रल फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, क्योंकि नॉर्मली भी इसका जो है इसकी वार्मिंग रहती है, ठीक है, नॉर्मली भी वार्म रहता है, ठीक है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर इसकी वार्मिंग, ठीक है ना, अगर इसकी वार्मिंग जो है मोर देन द एवरेज होती है, यानी लानीना टाइम पे अगर ये बहुत ज़्यादा इसकी वार्मिंग होगी, तो ऐसे कंडीशन में ये बन जाएगा नेगेटिव आईओडी, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ये बन जाएगा नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बनने से क्या होगा कि क्योंकि बे ऑफ बंगाल बहुत वार्म होगा, तो ऐसे कंडीशन में दीज रीजन्स
साउथ ईस्ट एशिया के सारे एरियाज में बहुत हैवी रेनफॉल होगी। इसी के साथ साथ इन एरियाज में सुपर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होगा। These areas will be experiencing formation of super cyclones. Not only super cyclones, यहाँ पर साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के साथ साथ फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के साथ साथ फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट हो गया कि जैसे एक साइक्लोन यहाँ बना हुआ है तो अराउंड 1500 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा साइक्लोन भी बन गया है। फ्यूजीवाड़ा जापानीज क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। तो दो पैरेलल साइक्लोन्स अगल बगल में बने हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी पे दो पैरेलल साइक्लोन्स बनते दिखाई देंगे। तो इन दिस सिनेरियो, दिस रीजन, मतलब किस सिनेरियो में, नेगेटिव आयोडी की कंडीशन में दिस रीजन विल बी गेटिंग वेरी हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल होगी यहाँ पे, सुपर साइक्लोन्स बनेंगे इस एरियाज में, फ्लडिंग कंडीशंस आएंगी इन सारे एरियाज में, स्टॉर्म सर्जेस यानी कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे कंडीशन में। ये सिनेरियो नेगेटिव आयोडी का। पॉजिटिव आयोडी का कंडीशन उल्टा होता है। पॉजिटिव आयोडी में जो हमारा अरेबियन सी है, दिस विल बी मोर वार्मर। पॉजिटिव आयोडी की कंडीशन में दिस अरेबियन सी विल बी मोर वार्मर देन द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी ज़्यादा गर्म होगा बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी इस तरह से होगी, देखो। इसकी पॉसिबिलिटी कैसे होगी? हमने देखा कि एल नीनो के टाइम पे क्या होगा, जो एल नीनो है, एल नीनो करंट, वो कुछ इस तरह से मूव करेगी। अब इस रीजन में जो एल नीनो करंट है वो लगातार रोरिंग 40s, यहाँ पे जो वेस्टर्लीज उनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s कहते हैं क्योंकि उन विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s के कांटेक्ट में आने से ये विंड्स इस वार्म वाटर को बहुत तेज़ी से ड्रैग करेंगी और ये लगातार अटलांटिक के सदर्न रीजन से पहुँचना स्टार्ट होगा, यहाँ पहुँचना स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी ये सेम विंड्स चलती हैं। तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ये सब क्या करेंगी, करंट दोबारा इस वार्म वाटर को और ड्रैग करेंगी आगे। एंड फाइनली ये जो वार्म वाटर है ये इस रीजन से निकल के ये इंडिया के, मतलब इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में पहुंच जाएगा। इन दिस वे जो हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन है, दिस विल बिकम मोर एंड मोर वार्मर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। अब जब इंडियन ओशन का वेस्टर्न साइड ज़्यादा वार्म होगा, when the eastern side of Indian Ocean is more warmer, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पहली चीज, इंडिया पे जो एल नीनो इफेक्ट था वो कैंसिल हो जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एल नीनो इफेक्ट जो इंडिया पे जिसकी वजह से डेफिसिट रेनफॉल होने वाली थी, अब डेफिसिट रेनफॉल नहीं होगी। अब इंडिया में जो है रेगुलर या नियर एवरेज रेनफॉल होगी, एवरेज रेनफॉल होगी, डेफिसिट रेनफॉल नहीं होगी। क्यों ऐसा होगा? हमने देखा कि जो मॉनसूनल विंड्स थी वो इंडिया में कम पहुंच रही थी, लेकिन जब मॉनसूनल विंड अब अरेबियन सी के सरफेस, वार्म सरफेस पे पहुंच रही है, तो जो भले लिमिटेड विंड्स जा रही है इंडिया की तरफ, बट जो विंड्स जा रही हैं बिकॉज दे आर ब्लोइंग ओवर अ वार्म सरफेस वाटर, तो ये पहले से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगी। जब पहले से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगी तो भले ही दो विंड पहुंच रही हैं, लेकिन उन्होंने बाकी विंड्स की कमी पूरी कर दी। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया में क्या हुआ, एक एवरेज रेनफॉल हो जाएगी। तो पहला चीज़ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आईओडी विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एल नीनो इफेक्ट। हमेशा ध्यान रखना कि एल नीनो इफेक्ट हमेशा जरूरी नहीं है कि उससे इंडिया में ड्रॉट पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ एल नीनो इज कंबाइंड विद पॉजिटिव आईओडी इफेक्ट, तो ऐसे में एल नीनो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इंडिया and the Indian subcontinent basically it will receive average rainfall, neither surplus nor deficit। पहली चीज। सेकंड थिंग क्या होगी यहाँ पर कि ये एरिया, यहाँ पर क्या होगा, अरेबियन सी अब ज़्यादा वार्म है, तो वार्म सी सरफेस, ठीक है, वार्म सी सरफेस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस के बेंचमार्क को क्रॉस करेगा, दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर हाई इंटेंसिटी सुपर साइक्लोन्स। आपने देखा भी होगा जैसे कोविड के टाइम से 2019 से लेके 2024 तक के बीच के टाइम में आपने देखा होगा कि अरेबियन सी में कई बड़े सुपर साइक्लोन्स बने थे, काफ़ी सीवियर साइक्लोन्स आए थे, ठीक है ना। तो दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सुपर साइक्लोन्स इन अरेबियन सी।
और ज़्यादा नंबर ऑफ साइक्लोन्स बनेंगे, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। नॉट ओनली दिस, ये जितना कंडीशन आपको दिख रहा है यहाँ का, इन ये सारे कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर है, वार्म वाटर का इवेपोरेशन जल्दी होता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वार्म वाटर के इवेपोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होंगे तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। तो इन सारे रीजन्स में हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग, ये सब देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना, हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग सब कुछ होगा यहाँ पर। वही ऑन द अदर हैंड इस रीजन में ड्राई कंडीशन होगी, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया, दिस रीजन विल बी हैविंग हाई प्रेशर कंडीशंस, ड्राई कंडीशंस। तो इन ड्राई कंडीशंस की वजह से इस एरिया में ड्रॉट कंडीशंस होंगी। सेकेंडली, इस टाइम पे यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कई सारे पेस्ट जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी, कई सारे कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा। उनमें एक बड़ा कॉमन और बहुत पॉपुलर से बोलते हैं लोकस्ट। तो लोकस्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ यहाँ पे बर्स्ट होगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा उसका, और ये लोकस्ट जो है फिर आसपास के एरिया में जहाँ पे भी क्रॉप्स होंगे उनको खाने के लिए उस तरफ स्वैम्स में, बड़े बड़े झुंड में, बड़े बड़े लहर ऑफ वेव्स के फॉर्म में मूव करेंगे और फिर वहाँ पे क्रॉप्स को डैमेज करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे, अगेन कोविड का टाइम क्या ही टाइम था, है ना, हर तरफ से बस एक ही खतरा दिख रहा था। खैर, तो जो है आपने देखा होगा उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया तक इनफैक्ट, तो वहाँ पे जो है लोकस्ट, लोकस्ट कैसा होता है, जैसे ग्रास हॉपर होता है ना, ग्रास हॉपर जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये ब्राउन कलर का होता है। ये पर्टिकुलरली इन्हीं रीजन्स में सब जगह जो है पाया जाता है। लेकिन अब चूंकि इस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो हाई ह्यूमिडिटी प्लस हाई टेम्परेचर, इट इज़ द बेस्ट सूटेड कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉस्किटोज, और इस तरह के जो भी पेस्ट्स होते हैं, इन सबके ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट कंडीशंस होती है। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये हुआ कि इन्होंने हमारी क्रॉप्स पर अटैक करना स्टार्ट किया, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी वर लकी इनफ कि जब तक ये इंडिया में पहुंचे थे तो हमारा हार्वेस्टिंग सीजन लगभग खत्म हो चुका था, और जो है सोइंग पीरियड चल रहा था। ऑल्दो इनसे नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान उस लेवल का नहीं हुआ जहाँ दूसरे देशों में जैसा हुआ था, ठीक है ना। हमारा अड़ोस पड़ोस के देश, एक ही तो पड़ोसी है हमारा, ठीक है ना, तो एक पड़ोसी देश हमारा, वो तो बोलता है कि ये लोकस्ट इंडियन हमारे ऊपर छोड़े हैं। अब अनपढ़ लोगों को समझ में तो आता नहीं तो क्या बोले इन लोगों को, है ना। तो जो है खैर छोड़ो उसको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे ऊपर छोड़ा था इनको, लोकस्ट को, तो लोकस्ट आ रहा है उधर से, हम क्यों से छोड़ेंगे भाई उसको। खैर, तो आप ध्यान रखना, लोकस्ट इन्वेजन हुआ होगा, फॉरेस्ट फायर इन इंडोनेशिया एंड द नॉर्दर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये चीज़ होगा देखने को। एंड देन उसके बाद जो है इन एरियाज में फ्लडिंग, हैवी रेनफॉल, ये सब देखने को मिलेंगे आपको, प्लस लोकस्ट अटैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, या अटैक ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़। इन्वेजिव स्पीशीज़ ही होती है ये, ऐसी कोई भी स्पीशीज जो इकोसिस्टम को डैमेज पहुंचा रही है, इकोसिस्टम के रेगुलर फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको हम इन्वेजिव स्पीशीज़ की कैटेगरी में ही रखते हैं, लेकिन उसको हम इन्वेजिव स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था आपका पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी का। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ चीज़ ये? और क्लियर होने के साथ साथ इस टॉपिक को समझने में मज़ा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा गला जरूर ख़राब है, तो मे भी बार बार थोड़ा सा मैं थ्रोट क्लियर कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो थोड़ा वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो उसमें। अदरवाइज आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको अच्छे से, ठीक है ना। अब अब एक और चीज़ है, वो है MJO, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है ना, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अब देखो ज्योग्राफी में एक चीज़ होती है कि ज्योग्राफी में आप जब नाम पढ़ते हो चीज़ों का, कॉन्सेप्ट्स का, तो आपको बड़ा यूनिक लगता है, यार ये क्या था। जैसे आपने लिखा, जैसे पढ़ा वॉकर सर्कुलेशन, तो वॉकर, एडवर्ड वॉकर था, तो वो जोग्राफर का नाम था बेसिकली, ठीक है ना। इनफैक्ट उन्होंने डिसकंटिन्यूटीज पढ़ी होंगी, पढ़ा था मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जैसे मैंने उसको याद करने का तरीका भी बताया था, CM राबड़ी गॉट लाल्यू, ठीक है ना। तो C फॉर कॉनरेड, M फॉर मोहो, ठीक है, R फॉर रैपिटी, देन CM राबड़ी गॉट लालू गुटनबर्ग, और लेमैन हो गया, ठीक है ना। तो ये अधिकतर लोगों के नेम है, ठीक है ना, ये अधिकतर लोगों के नेम है। मान लो मैं कोई चीज़ डिस्कवर कर लूँगा तो गॉड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये नेम्स है। तो ऐसी ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन में क्या है, ये क्लाउड्स का एक पल्स है। इसको डिस्कवर किया था पॉल मैडन एंड रॉलैंड जूलियन ने, ठीक है ना। पॉल मैडन एंड रॉलैंड जूलियन ने कहता, अब ये पॉल या तो जूलियन होगा, मैडन होगा, वो शायद इंटरचेंज हो सकता है एक बार को, लेकिन
पॉल मेडन एंड रॉलेंड जूलियन, ये दो लोग थे बेसिकली जिन्होंने क्लाउड्स के ऑसिलेशन को डिस्कवर किया था। ये होता क्या है, चलो एक बार देखते हैं जरा इसको भी, ये होता क्या है। सो बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इक्वेटर वाले रीजन में बेसिकली क्लाउड की पल्सेस होती हैं, जिनकी साइकिल लगभग 30 से 60 डेज की इनकी लाइफ होती है। और ये जो पल्स है क्लाउड्स की, ये लगातार जो है आगे मूव करती है, ये लगातार आगे मूव करती है, ठीक है ना। और इनकी एक एक्टिव फेज होती है और इनएक्टिव फेज होती है, एक्टिव फेज एंड इनएक्टिव फेज। तो अगर एक्टिव फेज में ये मानसूनल टाइम पे इंडिया के ऊपर है, तो ऐसे में ये क्लाउड्स जो होंगे ये इंडिया के ऊपर डाइवर्ट हो जाएंगे, और ऐसे में इंडिया के ऊपर हैवी रेनफॉल और ज़्यादा हो जाएगी, यानी एक री एनफोर्समेंट का काम कर देंगे, और ज़्यादा क्लाउड्स को खींच के लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लाउड्स इंडिया की तरफ आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्लाउड इंडिया की तरफ आएंगे तो ज़्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर इनएक्टिव फेज इंडिया के ऊपर है, तो ऐसे में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इंडिया पर जैसे बारिश जो होनी होगी वो होती रहेगी। तो ये था मेडन MJO, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इसको सिंप्लीफाइड तरीके से कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो क्लाउड कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, इवेपोरेशन हुआ, ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद जो विंड थी वो वापस सबसाइड हो रही है, जहाँ सबसाइड हो रही है वहाँ पे हाई प्रेशर बनाएगी, ठीक है ना। एंड इन दिस वे ये एक जो है एक पल्स बन गया है, एक बीट टाइप का बन गया है ये। So this will be acting as a beat. जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है कंटिन्यूसली, किधर ये कंटिन्यूसली मूव करेगा वेस्ट से ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, ठीक है ना। और 60 डेज में पूरा पल्स से कंप्लीट हो जाता है। नाउ व्हाट हैपन, सपोज करो ये इंडिया है एंड जो मॉनसूनल विंड्स हैं वो इसकी तरफ जा रही हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये वाला पार्ट, जो क्लाउड वाला पार्ट है वो एक्टिव पार्ट है इसका, क्लाउड वाला पार्ट अगर इस लोकेशन पर कहीं होगा, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये जो विंड्स यहाँ जा रही हैं वो इन क्लाउड्स को भी अपने साथ ड्रैग करके, ये जो विंड्स यहाँ जा रही हैं वो इन क्लाउड्स को भी अपने साथ ड्रैग करके आगे ले जाएंगी ऐसे, ठीक है ना। और अगर इसका इनएक्टिव फेज, ठीक है ना, अगर इसका इनएक्टिव फेज आगे है, ये जो दिख रहा है ये इनएक्टिव फेज है, तो अगर ये इनएक्टिव फेज इधर जा रहा है तो इनएक्टिव फेज से जो है इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी कोई काफ़ी बड़े एरिया में होता है। तो अगर ये फेज इधर है तो ये इंडियन मानसून में जो बारिश होता जा रही है वो एज यूजुअल जाती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन MJO बेसिकली ये एक अंडर रिसर्च टॉपिक हो जाता है। इट विल इम्पैक्ट इट मे इम्पैक्ट मानसून डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस फेज में, एक्टिव फेज में या इनएक्टिव फेज में। तो दिस इज MJO, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ चीज़ ये? यस, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं चीज़? तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर, ये ठीक है। एक बार जल्दी से रीड कर लो जो लाइव देख रहे हैं, ठीक है ना, एक बार जल्दी से रीड कर लो, और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार प्लीज़ चेक कर लो उसको, और कोई डाउट है तो प्लीज़ रेज योर डाउट्स हियर। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी आप जो है यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ओके, देन वी कॉल इट अ डे, एंड कल हम जो है कल से स्टार्ट कर देंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो पहले क्लासेस कराए थे तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना,
वो क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो होपफुली कल या परसों तक मैक्सिमम जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी हमारा खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंगली उस हिसाब से अपने टॉपिक्स को आप रिवाइज करके रखिए, ठीक है। कोशिश करना कि आप डाउट ही पूछ रहे हैं अपने, क्योंकि अगर रिवाइज करके पहले से आओगे तो पहले के टॉपिक्स को, तो आप डाउट भी पूछोगे तो डाउट के भी आंसर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।